Hello, friends. Till now, we have discussed various segments such as how to find mole and the balancing of redox reaction, balancing of chemical reaction by hit and trial method. Now, we'll study the most easy. Basically, I like this concept very much. Principle of atom conservation. ठीक है? It is very helpful. It is very helpful for J advanced like questions. Okay. The first benefits of POAC, the first benefit of POAC is that you don't need to balance any chemical equation. In school exam, definitely you have to balance because those people might not know what is POAC. But for competitors, it's like time saving technique. You don't have to balance any reaction, you just have to conserve the atoms in reactant and in products for a complete reaction, not for a half reaction. For a complete reaction, you have to balance the atom without balancing the equation. Oh wow, sir, what is this? This is very important. POC is based on law of mass conservation. The POC says that the mass is conserved, the moles of atom shall also be conserved, and mass of atom is also. Sorry, क्या लिख पा रहे हो? अरे रुको, क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल है. This principle is fruitful for the students when you don't get the idea of balance. There is no need of balancing any chemical equation for POAC. ठीक है? Example वैसे तो अपन ने एक टफ वाला example भी लिया है, but start. Let me teach this concept by any particular example. Suppose N2 plus H2 gives ammonia. Sir, this is not balanced. This is not balanced. बैलेंस कर लो. N2 plus 3H2 gives twice NH3. सर अभी तो आपने बोला था बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है. या दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन. बट पीओएसी में अगर आप बैलेंस नहीं भी करोगे, पीओएसी में अगर आप बैलेंस नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा. सो लेट सपोज इट इज N2 plus H2 gives ammonia. You don't need to balance the reaction. तो सर कैसे करेंगे, कैसे? लेट सपोज कि द क्वेश्चन इज 17. द क्वेश्चन इज 54 या 56 ले सकते हैं. 56 ग्राम ऑफ N2 is burned to form ammonia. Then find the mass of ammonia produced. ठीक है, बैलेंसिंग से कभी भी करेंगे एंड विदाउट बैलेंसिंग भी करेंगे. तो पहले मैं आपको पीओसी सिखा देता हूं. पीओसी क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन. द एटम इन द रिएक्टेंट साइड एंड एटम इन द प्रोडक्ट साइड आर कंजर्व. सो फॉर एनी पर्टिकुलर एटम, लेट इट बी नाइट्रोजन, मे इट बी हाइड्रोजन, मे इट बी एनीथिंग, यू हैव टू बैलेंस द एटम्स. ठीक है सर, समझ नहीं आया तो मैं बताता हूं. पीओएसी फॉर नाइट्रोजन, पीओसी फॉर नाइट्रोजन एटम आप कैसे लगाओगे मैं आपको बता देता हूं, है ना. बैलेंसिंग के साथ भी करेंगे, विदाउट बैलेंसिंग भी करेंगे. पीओसी फॉर नाइट्रोजन एटम. तो एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू एटम इन प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट में आपको बैलेंसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है. बट इन रिएक्टेंट देयर आर टू नाइट्रोजन एटम्स. तो 2 into moles of reactant, that is N2, is equal to 2 into moles of N2 is equal to, यहाँ पर नाइट्रोजन एटम की बातें चल रही है. We are not talking about balancing. At all. It is equal to 1 into moles of ammonia. ठीक है, ये आपने नाइट्रोजन के लिए बैलेंसिंग करी. अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो बैलेंस फॉर हाइड्रोजन, है ना. हाइड्रोजन के लिए बैलेंस करो तो यहाँ पर 2 है. रिएक्टेंट में देखो, है ना, रिएक्टेंट में एटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट में एटम. तो यहाँ पर एटम देखो, हाइड्रोजन है H2, तो यहाँ पर 2 आएगा. 2 into moles of H2 इज इक्वल टू, यहाँ कितना है 3 into moles of अमोनिया. नहीं सर हमें तो नहीं समझ पड़ा. तो आपको सिर्फ एटम बैलेंस करना है. यू डोंट हैव टू बैलेंस द रिएक्शन, सिर्फ एटम बैलेंस करना है. ठीक है, तो 2 into moles of N2 is equal to 1 into moles of ammonia. so आपको रिएक्शन बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले साहब बात ये अपन पीओसी लगाएंगे, उसके पहले 56 ग्राम ऑफ N2. तो पहले मोल्स ऑफ N2 निकाल ले, है ना. तो मोल्स ऑफ N2 is equal to given weight upon molecular weight, है ना. तो 56 ग्राम अपॉन N2 कितना होता है? N2 कितना होता है? N is 7 and 14, तो 14 into 2 28, है ना. 7 into 2 14 is the molecular weight of one nitrogen atom, तो 14 into 2 28, तो 28 into 2 is equal to 56. ठीक है, तो देयर आर 2 moles of nitrogen. सर आप ऐसे करोगे वैसे करोगे, अरे रुको जरा सब्र रखो. ठीक है, चलो पहले पीओएसी से करते हैं. लेट्स डू इट फ्रॉम पीओएसी.
तो साहब यू हैव टू फाइंड द ग्राम ऑफ अमोनिया, यू हैव टू फाइंड वेट ऑफ अमोनिया, यू हैव टू फाइंड वेट ऑफ अमोनिया दैट इज लिबरेटेड, है ना, वेट ऑफ अमोनिया दैट इज लिबरेटेड। चलिए करें, है ना। तो पहले मैं पीओएसी से करता हूँ। यू विल से कि सर पीओएसी और मोल कंसेप्ट में दोनों में तकरीबन सेम टाइम लग रहा है, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट जब टफ क्वेश्चन आएगा तो पीओएसी रॉक्स, ठीक है। चलिए, तो नाइट्रोजन के लिए अगर मैं लगाऊं तो 2 इंटू मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ अमोनिया। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपके कितने हैं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपके कितने हैं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपके आए 2, तो 2 इंटू 2 तो इस एटम का था, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपके 2 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ अमोनिया। तो मोल ऑफ अमोनिया कितने आ गए, मोल ऑफ अमोनिया आ गए 4। सो अपने आ गए 4 मोल अमोनिया, कितने आ गए 4 मोल अमोनिया। तो 4 मोल अमोनिया मतलब मोलिकुलर number of moles is equal to given weight by molar weight. So given weight is equal to molar weight into number of moles. The number of moles 4 and 14 plus 3 17. So 17 into 4 is the gram of ammonia that is obtained. फिर से देखो, 2 into moles of N2 is equal to 1 into moles of NH3. तो moles of N2 अपन निकाले वहां से 50 given weight by molar weight से, है ना। तो moles of ammonia आ गए क्योंकि यहाँ पर N था। तो moles of ammonia into molecular weight, हाँ 14 plus 3 17 is equal to mass of ammonia। ये तो आपका आया POAC से। सर पीओसी अगर नहीं लगाते, हम ऐसे भी करते तो पहले आपको बैलेंस करनी पड़ती, तो N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3, पहले बैलेंस करो, फिर आप निकालो मोल्स ऑफ N2 कितना है, मोल्स ऑफ N2 है 2 मोल। तो अगर इसके 1 मोल के लिए इसके 2 मोल लग रहे हैं तो इसके 2 मोल के लिए यहाँ कितने मोल लगेंगे, 4 मोल। सर पीओसी में तो और दिक्कत आई, बैलेंसिंग से ज्यादा इजी पड़ा, बिकॉज दिस वाज सिंपल क्वेश्चन। आई एम अगेन रिपीटिंग, इन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पीओसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं सर हम तो नहीं मानेंगे, मत मानो, जब क्वेश्चन करेंगे तो पता पड़ेगा आपको, और ना आपको करना है, क्योंकि इन दिस स्लाइड वी कैन गो अप टू सम लिमिट। प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है, मोल कंसेप्ट की प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मतलब आपको एकदम एक्सपर्ट लेवल बनना है मोल कंसेप्ट में, तभी यू विल रॉक फिजिकल केमिस्ट्री, मजा आएगा, ठीक है। तो अपनी स्लाइड्स के अलावा यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट एज वेल। यहाँ तो हम कोशिश करेंगे ही। चलिए एक तगड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ओह सर व्हाट इज दिस, अब आएगा ना भिड़ू मजा। 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3, है ना। देखो इसको मैं मोल कंसेप्ट से नहीं करूंगा, ऐसे ही करूंगा। 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 was treated by a series of reagents, साफ फलाने का कुछ भी कर दिया, to convert all of its carbon to K2ZN3 FeCN6 बैलेंसिंग करने जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, है ना। कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ओह सर व्हाट इज दिस, यहां पर इसका मोलिकुलर वेट दे रखा है कितना, मोलिकुलर वेट ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू 138 एंड मोलिकुलर वेट ऑफ K2ZN3 FeCN6 होल थ्राइस मोलिकुलर वेट ऑफ दिस इज 698। तो दोनों का मोलिकुलर वेट दे रखा है। तो सर बैलेंस खेल लो सर, बैलेंसिंग कर लो सर, मजा आ जाएगा। अरे नहीं रे, बैलेंसिंग कैसे करोगे, वैसे आपको सीरीज ऑफ रिएक्शंस तो दी नहीं है। तो सर पीओसी लगा सकते हैं, यस पीओसी लगा सकते हैं, दिस इज अ वेरी गुड वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो उसने खुद ही बोला कन्वर्ट्स ऑल ऑफ इट्स कार्बन। सो एटम कौन सा कंजर्व करवाना है, यू हैव टू कंजर्व द कार्बन एटम, ठीक है। तो यहां पर कार्बन की जगह लिखा भैया कितना एटम है, 1 इंटू मोल ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू, यहां पर कार्बन के नीचे कितना लिखा है सर, 6, नहीं, होल ऑफ दीज आर ट्वाइस, सो 6, होल ऑफ दिस आर ट्वाइस, तो 6 इंटू 2 12, तो यहां पर है 12, कितना है 6 इंटू 2 12 इंटू मोल ऑफ दिस K2ZN3 FeCN होल 6, तो 1 इंटू मोल ऑफ K2CO3 मतलब गिवन वेट कितना है K2CO3 का 27.6 अपॉन मोलिकुलर वेट कितना है 138 इज इक्वल टू 12 इंटू इसका मोल मतलब गिवन वेट बाय मोलर वेट, तो इसका गिवन वेट मान लो x है और मोलर वेट 698, तो आपका गिवन वेट आ जाएगा, आपका गिवन वेट आ जाएगा। इट इज एज सिंपल, 1 लाइन का क्वेश्चन, है ना। तो K2CO3 लिखो, K3 पूरा वो फॉर्मूला लिख दिया, देन कंजर्व कार्बन एटम 1 इंटू मोल ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू कितने कार्बन है 6 इंटू 2 12, 6 और 6 इंटू 2 12 ही तो होगा 12 इंटू मोल ऑफ दिस, तो गिवन वेट बाय मोलर वेट करके आपने मोल्स निकाल लिए, तो दिस बाय दिस बाय दिस, तो आपका गिवन वेट आ जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना। बैलेंसिंग से करते तो पता नहीं क्या होता, वैसे तो इस रिएक्शन में तो बैलेंसिंग नहीं कर पाता, बट फिर भी आप समझ पा रहे हो, कोई बहुत सीरीज ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, देयर आर सीरीज ऑफ रिएक्शंस, देन पीओएसी इज द बेस्ट मेथड, नॉट बैलेंसिंग, अंडरस्टैंड। इसका अपन ने
सॉल्यूशन शायद तक दिया हुआ है, वही है ना? तो आप देख लेना एक बार, वही चीज़ है थ्योरेटिकल फॉर्म में जो मैंने आपको बताई। ओके, मोल्स ऑफ कार्बन इन दिस इक्वल टू मोल्स ऑफ दिस इन दिस। चलिए, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ दिस इक्वल टू 12 इंटू मोल्स ऑफ दिस, क्योंकि कार्बन आप बैलेंस कर रहे हो तो आपने ये निकाल लिया। ठीक है, तो आपका आंसर आया 11.6 ग्राम। हमने भी वही करा है एक्चुअली, बस एक प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ना है आपको फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है दोस्तों, चलिए 11.6 ग्राम। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द POAC पार्ट, है ना, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। 2 ही एग्जांपल ले पाए, बाकी एग्जांपल्स आप बिल्कुल लीजिए, जी भर के क्वेश्चन करिए, इसके मजा आ जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। सर अभी तक डिफिकल्ट नहीं था क्या? नहीं, POS इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बट लिमिटिंग रिएजेंट इज डिफरेंट, है ना? फ्रॉम नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस इट। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, विल स्टडी इट, थैंक यू।